میں دبئی میں لیکچر دے رہا تھا تو میرے خلاف پیمفلیٹ کافر کافر کا. میں کیا ہو گیا اگر میں کوئی شریعت کے اصول کو توڑا, میں نے گربان پکڑتے ہاتھ اوپر باندھنا چاہیے, ہاتھ نیچے باندھ نماز ہوئی. میں تو حنفی ہوں, میں فقہ میں ایکسپرٹ نہیں ہوں. ہاں میں حنفی ہوں. مدنی بولنا جائز ہے, دیوبندی بولنا جائز نہیں, کیوں ڈبل اسٹینڈرڈ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعوت کے حوالے سے تو علمی اور فنی معلومات کافی آ گئی, اس حوالے سے میں مزید کچھ سوال نہیں کر سکوں گا. صرف اتنی بات کہہ سکوں گا کہ جیسے کہ فقہ میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے صرف ان مسائل کا حل نہیں بتایا جو اس وقت میں موجود تھے, بلکہ ان مسائل کا حل بھی بتایا جو مستقبل میں سینکڑوں ہزاروں سال بعد آنے والے تھے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے دعوت کے حوالے سے وہ مسائل بھی بتا دیا جو سینکڑوں سال بعد آنے والے ہیں. تو میں کہوں گا کہ یہ دعوت کے میدان کے امام ابو حنیفہ ہے, اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے. باقی میرا سوال اس مجمع کے حوالے سے کچھ تھوڑی سی گزارش یہ ہے کہ علماء کا مجمع ہے, تو اب علماء کے حوالے سے کچھ ہدایات اگر ارشاد فرمائے کہ علماء عوام کے ساتھ جو ڈیلنگ رکھے وہ کس طریقے سے رکھے, اس کے آداب کیا ہو, آپس میں جو علماء کے اختلافات ہے جو تا قیامت رہیں گے اس حوالے سے ان کا رویہ کیا ہو, اور تیسرا یہ کہ اسٹیٹ اور حکومت کے حوالے سے علماء کیسا کردار ادا کرے, ان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے. ان تینوں حوالوں سے اگر آپ مختصر سے کچھ تجاویز ارشاد فرمائے تو بہت فائدے کا باعث ہوگا. استاد جی نے جو فرمایا شیخ نے یہ کہا کہ میں ابو حنیفہ ہوں دعوتی میدان میں, یہ میں بالکل صحیح نہیں مانتا ہوں. میں ان کا 0.001% بھی نہیں ہوں. آپ نے محمد میں کہہ دی تو انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا, لیکن میں سمجھ رہا ہوں جو علماء جو پاسٹ کے تھے, ابو حنیفہ, امام شافعی, امام ابن حنبل, امام مالک, میں اللہ بھی مسیب رحم اللہ, وہ تو ان کا درجہ ذرا کچھ اور ہی ہے. جس طرح کی شدیدات نے مجھے کہا دیدات پلس, وہ تو مجھے ہمت افزائی کے لیے کہا. دیدات کا معیار دیدات ہے, دیدات پلس کا تو انشاءاللہ ثواب ملے گا, لیکن میں دیدات پلس ہوں تو آپ جزاک اللہ, اللہ کو جزائے خیر دے, لیکن میں ان کا 0.001% بھی نہیں ہوں. یہاں تک آپ کا سوال ہے کہ علماء آپس کا کیسا رویہ رہنا چاہیے. میں وہ صحیح انسان نہیں ہوں, لیکن میں تجربے سے کہہ سکتا ہوں, کیونکہ میں تو اپنے آپ کو عالم تو نہیں کہتا ہوں. کیا قرآن آئی مے بی ایکسپیرینسڈ ان کمپیریٹیو ریلیجن, تقادم ادیان میں ٹھیک ہے, میرا ذرا زیادہ مطالعہ ہے, لیکن میں نے کئی چیز نہیں کہی. جو دعوت کا جو ٹاپک تھا نا, کوئی کہیں گا ذاکر میں نے تو 1% بھی بات نہیں کی, تقریر کر لی, صحیح ہے. دعوتی میدان کا جو ایک ماسٹر کی دعوتی میدان کی ہے سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64. کل اہل کتاب کو اہل کتاب سے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات کیا ہے, اللہ نعبد الا اللہ, کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں. مطلب نشرک بھی چاہیے ہوں کہ ہم آپس میں کسی کو شریک نہ کریں, نشرک بھی چاہیے ہوں. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ, ہم آپس میں کسی کو معبود نہ بنائیں. اور اگر کوئی نہیں مانے تو کہو کہ میں مسلم ہوں, قال انی من المسلمین. تو اس کی آیت کے شروع میں ہے کل یا اہل الکتاب, کہو اہل کتاب سے, یہود و نصارہ سے, کہ دعوتی میدان میں آپس میں اس بات کی طرف آئے جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. تو یہ ماسٹر کی ہے, یہ یکسانیت کی بات کرو, اختلاف کی مت. لیکن کئی بار اگر قرآن مجید میں کہا گیا یا نبی اللہ کے رسول کو مخاطب کیا ہے, لیکن اس کا جو حکم ہے وہ ساری امت کے لیے, تو ڈپینڈس کس طریقے سے آیت نازل ہوتی ہے. تو یہ خصوصاً مخاطب ہے اہل کتاب سے, یہود و نصارہ سے, لیکن براڈر وے میں آپ کوئی بھی غیر مسلمان سے استعمال کر سکتے ہیں, چاہے ہندو ہو, تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, ایکسٹینشن بائی. تو ہندو کتاب سے بھی تو پہلی بار جب میں تقریر کی ہندوازم اور اسلام میں یکسانیت, فتوے لگ گئے. میں دبئی میں لیکچر دے رہا تھا تو میرے خلاف پیمفلیٹ کافر کافر کا. میں کیا ہو گیا, میں لیکچر تو سنے نہیں, ہو ہی نہیں سکتا ہے. ارے بھائی لیکچر کو سنو, اگر میں کوئی شریعت کے اصول کو توڑا, میں نے گربان پکڑو اور لیکچر ختم ہو, ماشاءاللہ کیا تقریر ہے, تو یہ بات صحیح نہیں ہے. اس کا مطلب یہ عالم جانتا نہیں حدیث صحیح ہونے کی پھر ڈفرینس بہت کم ہے. اکثر ڈفرینس ہے اصول. حدیث کا اصول کیا ہے, فقہ کا اصول کیا ہے. کبھی کبھی 7 لیول اصول ہے فقہ کے, کس کے 9 ہے, کس کے 10 ہے. سب سے ٹاپ پہ سب کامن ہے, سب سے ہائیسٹ ہے سب فقہ کا قرآن. کوئی بھی حنفی, شافعی, حنبلی, مالکی, جعفری, قرآن. نمبر 2 حدیث نہیں, متواتر حدیث کے درجے. حدیث میں متواتر حدیث سب میں سے نمبر 1 قرآن, نمبر 2 متواتر حدیث. تو متواتر حدیث ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں. تو اکثر جب میجر پرابلم میں اصول سے میں ایک مثال دوں گا اصول بات کرنے کے پہلے. اگر ایک فارمولا ہے میتھمیٹکس میں 5 + 6 انٹو بریکٹ ملٹیپلائی بائی 3 ڈیوائڈ بائی 2 انٹو بریکٹ 5 - 2, آنسر کیا ہے, کیسا سالو کریں گے آپ؟ باڈ ماس. آپ نے سنی میرا لیکچر؟ بس ابھی ذہن میں آیا. ماشاءاللہ, جیسے کہ آپ کو الہام ہوتا ہے ہمیں بھی ہوتا ہے. ماشاءاللہ, الہام کی بات آ گئی. میں نے تقریر کیا تھا, ابھی پوڈ کاسٹ کیا تھا, تو پوڈ کاسٹ کے بعد میرے بیٹے نے بولا ابا آپ نے کیا کہا میں نے, تو الہام میں اللہ کی طرف سے مدد آتی, میں نے غلطی سے کیا اللہ کے رسول کی طرف سے مدد آتی. اور میں ہوتا ہے نا سلپ آف دا ٹنگ, کیا کہتے ہیں زبان پھسلنا. جی زبان پھسلنا, زبان پھسلنا عام ہے, سبقت لسان, سبقت لسان, کریکٹ. تو سلپ آف دا ٹنگ. تو میرے بیٹے بولا ماشاءاللہ ابا کسی پکڑا نہیں ابھی تک کے, 5 ملین لوگ نے دیکھ لیا, کتنے پکڑا نہیں, کوئی بھی بولے گا اسے بہت ٹنگ ہے.
इल्हाम तो अल्लाह की तरफ से आता है ना, तो भी उर्दू में, और उर्दू में ज्यादा स्लिप ऑफ द टंग होता है। तो मैंने कहा कि मुझे जवाब पता नहीं, अल्लाह की मदद आती है, अल्लाह के रसूल की मदद है, मैंने अल्लाह के बदले अल्लाह के रसूल कह दिया। तो उसके ऊपर सोशल मीडिया में कल से जंग चढ़ गई, पाकिस्तान में तो काम है ना पकड़ना, तो उसके ऊपर डिबेट शुरू। अभी मैं इतने बार तकरीर करता हूं, अगर ऐसी कोई मिस्टेक निकालता है जानबूझ के, बिल्कुल गलत है। क्यों? वो बाकी लेक्चर देख चुका है मेरे, कि कभी मैंने कहा, अगर 10 बार मैंने कहा कि अल्लाह की मदद, एक बार अल्लाह के रसूल बोल दिया मैंने, तो क़यामत आ गई। उसको पकड़ के कोई भी बड़ा आलिम कभी भी ऐसा नहीं कहेगा, कभी भी नहीं करेगा। ये छोटे लोग हैं जो फेम चाहते कि मैं जाकिर नाइक की गलती निकाला, मैं कहां कहता हूं कि मैं 100% सही हूं, गलती को निकाले। अरे ऐसा कहा। जहां तक इख्तिलाफ का सवाल है, मेरा उसूल क्या है, जब इख्तिलाफ होता है, और मैं जब अंग्रेजी में तकरीर करता था ना, अल्हम्दुलिल्लाह 100% सब फिरके के मेरे साथ थे, सब शिया हो बरेली हो, सब फिरके साथ थे। बाद में मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने कहा मैं तुमसे नाराज हूं। क्यों नाराज है? आपको उर्दू में तकरीर कर, क्यों? आम मुसलमान, सब मुसलमान अंग्रेजी नहीं जानते, तो मैं तुमसे नाराज हूं। तो उसको खुश करने के लिए उर्दू में तकरीर करना शुरू किया गलतियों के साथ। बाद में पीस टीवी आया तो और शुरू किया। उसके बाद फतवे आने लगे, जाकिर काफिर है, क्या उर्दू में बात करना काफिर है, अंग्रेजी में वही चीज अंग्रेजी में बोला तो बोलते सुनने का तो डॉक्टर जाकिर नाइक को सुनो, क्योंकि कंपटीशन नहीं है, समझ रहे हैं ना? मैं तो इंग्लिश में बात नहीं करता, डॉक्टर नाइक को सुनो। जहां उर्दू में बात करने लगा, अरे उर्दू तकरीर में ज्यादा पब्लिक आ रहे, अंग्रेजी तकरीर में 5 लाख, उर्दू तकरीर में 10 लाख। तो जाकिर काफिर उठाए बनता है कॉमन है। मैंने कभी भी किसका जवाब नहीं दिया। मेरा क्या उसूल है, व्हेन पीपल थ्रो स्टोन एट यू, अगर कोई आप पे पत्थर फेंकता है, अपने आप को उतना ऊंचा करो पत्थर आप तक पहुंचे नहीं। दूसरा, अगर कोई आप पे ईंट फेंकता है, ईंट को लो और अपना घर बनाओ। अच्छा। तो मैंने कहा हमारे कॉन्फ्रेंस बड़े होते और सब कॉन्फ्रेंस अपने अपने जमात के, हम लोग तो मैं तो मुसलमान हूं, और जब मुसलमान बोलते बाकी अरे डॉक्टर साहब आप ऐसा कैसा कहते हैं, मैंने बोला लिखा है कुरान में, मैंने जाकिर भाई आप तो हमारे हैं, आपको तो मैं तो रंगे की चोट पे बोलता हूं, मैं तो मुस्लिम हूं। लेकिन अगर कोई अपने आप को देवबंदी बोलता है, देवबंद से फारग है, अच्छी बात है। कोई मदनी बोलता है, ये जायज है, इसमें कोई तफरुक नहीं। आप मदीना से फारग है मदनी बोलते हैं, देवबंद से फारग है देवबंदी बोले उसको लगता है, मदनी बोले नहीं लगता। क्यों? ये तो डबल स्टैंडर्ड हो गया ना, मदनी बोलना जायज है, देवबंदी बोलना जायज नहीं। क्यों डबल स्टैंडर्ड? तो अगर कोई मदरसे से फारिग है और मदनी की लक़ब से कहता है कि मैं ये हूं, मैं कासमी हूं, तो मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन हम मुस्लिम हैं, कौला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, 14 बार लिखा है कौला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, कौला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। और आयत को भी ताला बिला कलिमतुन कौला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन से खत्म होती है, क्योंकि मैं मुस्लिम हूं, मुस्लिम 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 होता है। तो हम तो माशाअल्लाह हो, तो लोग बोलने अरे वो मुफ्ती तुमको तुम्हारे खिलाफ पब्लिक में बात करता है, तुम उसको बुलाते। तो मैं कहा मेरे दोस्त से, मैं कुरान में कहा लिखे है कि डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ बात की तो आप जन्नत में नहीं जाएंगे, लिखे खुदा ने कोई हदीस में लिखेला है कि डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ बात की जन्नत में जाएंगे। तो मैं थोड़ी कुछ हराम कर रहा हूं। आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फेवर बात करो, आप मेरे स्टेज पे आ सकते हैं, मेरा उसूल है। उसके बाद स्टेज पे मेरे स्टेज से मुझे गाली, नो प्रॉब्लम, फिर वो मेरे दोस्त बन जाते हैं, वो जाकिर भाई क्या महान है माशा। एनीवे मैं पॉलिटिक्स में खड़े नहीं होता, मैं पॉलिटिक्स नहीं करता। तो उसूल है कि आप अल्लाह और अल्लाह की रजामंदी के लिए करो। ये जितने भी है लोग क्या करते हैं, अपने आप को हमेशा मैं ही सही, तो कोई फतवा देते, मैं क्या बोलता हूं, मैं भी सही, मैं ही सही, आई एम ओनली राइट। मैं बोलता हूं मैं भी सही, आई एम ऑल्सो राइट, दोनों में फर्क है। तो ये जो बोलते हैं मैं ही सही, अरे मैं बोलूंगा दावत ऐसा ही करना चाहिए, आपको बाइबल मेमोराइज करना चाहिए, ये तो जहन्नम में। अरे क्या ये एक तरीका है, जरूरी थोड़ी आप दावत करने के लिए आपको बाइबल याद करना चाहिए, एक तरीका है। आप नहीं करके फिर भी दावत दे सकते हैं। हर आदमी तो बाइबल एक तरीका है, नहीं बाइबल को कोट करना हराम है, वो फिर हमको उसको रिप्लाई करने पड़ता है, तो हमको भी हदीस पढ़ने पड़ता है, रिप्लाई करते हैं। तो इख्तिलाफ छोटी छोटी बात पे होना ही नहीं चाहिए। अगर आप रिसर्च किए, इसीलिए मुझे डॉक्टर इसार अहमद साहब वो आए थे माशाल्लाह, हमारे थे। मेरे वालिद थे शाफी, तो पहले शाफी से हमने सीखी नमाज, बाद में हनफी के माशाल्लाह उलमा से किए, फिर सल्फी के, फिर मलकी के, सबके माशाल्लाह। तो मुझे तो पूरा ऑलराउंडर है माशाल्लाह, और अभी भी मिलते रहता हूँ, सब लोग की इज्जत करता हूँ अपने अपने जगह। तो डॉक्टर इसार अहमद साहब जब मुझे मिले तो मैं नमाज पढ़ते देखा उनको, तो रफतन कर रहे थे। डॉक्टर साहब आप रफतन कर रहे? बोलते हाँ बेटा क्यों? इस पे मैं तहकीक पूछी तो मुझे इत्मीनान है, लेकिन मैं बाहर फतवा नहीं दूंगा। ठीक है, इसको बोलते बड़प्पन, उसका मतलब थोड़ी क्या मैं वो सही तो सब लोग वैसा ही करें, उनके तहकीक है। तो ये बड़प्पन होना चाहिए अपने में। उसको तो अरे डॉक्टर इतना सारा रफतन करते, मतलब उनने थोड़ी कहा कि मैं ही सही हूं। ये भी एक तरीका है, दोनों तरीके सही है। ये मेरे नजदीक अफजल है, ठीक है, इसके नजदीक हाथ रखना अफजल है। कोई हदीस में तो नहीं हाथ नीचे रखकर नमाज देंगे, आप रफत देने नमाज देंगे, ठीक है, अफजलात की बात है भाई। अगर 1000 पॉइंट में किसको 2 पॉइंट ज्यादा 2 पॉइंट कम, तो भी आप सब 90 के ऊपर ही है ना भाई। नमाज तो पढ़ो पहले, नमाज नहीं पढ़ेंगे डिस्कशन करेंगे रफत नहीं करना चाहिए। नमाज पढ़ो, मस्जिद में पढ़ो, इस पर डिस्कशन करो ना। मैं तो समझता हूँ मस्जिद में पढ़ी, उसके अंदर इख्तिलाफ का फर्ज ऐन है कि फर्ज किफाया है, उस पर डिस्कशन नहीं करूंगा। लेकिन और करीब लेके जाओ अल्लाह के ना। तो जब इख्तिलाफ हो रहा है, हमें इख्तिलाफ को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। और वो अगर गाली देता है
देने दो, क्या फर्क पड़ता है? अपने आप को इतना ऊंचा बनाओ. आज की तारीख में सबसे मशहूर इंसान कौन है दुनिया में? कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. आज की तारीख में सबसे मशहूर इंसान पूरे दुनिया में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. सबसे ज्यादा दुश्मन किसके? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के. ये सही बात है. कुरान की आयत है कि हम एक दुश्मन रखेंगे रसूल के लिए. कुरान की आयत है भाई. तो मैं कहता हूं अरुण शोरी, तू कुरान को सही साबित कर रहा है और भड़क जाता है. क्यों? कुरान में लिखे रहते तेरे बारे में. अगर सब दुश्मन बोलेंगे एक साल के लिए कोई भी अल्लाह के रसूल का दुश्मन है तो कुरान गलत. कुरान को गलत साबित करना बहुत आसान है. सब लोग दुश्मन मिलके बोले एक साल तक हम कुरान को अटैक नहीं करेंगे, हम अल्लाह के रसूल को अटैक नहीं करेंगे, तो कुरान गलत साबित हो जाएगा. हाँ कि नहीं? ये ओपन चैलेंज है अल्लाह का. अल्लाह ने जब कहा अबू लहब वो जलेंगे आग में, वो अल्लाह के रसूल झूठ बोलते थे. अल्लाह के रसूल के खिलाफ झूठ बोलते थे. उसने क्या बोला? सफेद काला, काला सफेद. इतने झूठ बोलते थे. जब ये आयत नाजिल हुई उनको सिर्फ ये कहना चाहिए कि मैं मुस्लिम हूं, या झूठ मूठ बोलना चाहता था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, और कुरान गलत साबित हो जाता था. एकदम इजी. लाख झूठ बोले और एक झूठ बोलो, लेकिन नहीं बोले क्योंकि अल्लाह जानते हैं. अगर कुरान में लिखा हुआ है कि यहूद कभी भी मौत की दावत नहीं देंगे अपने आप को, कि मौत से वो मोहब्बत नहीं करते. आज के यहूद सब एक आध की बात नहीं हो रही, एवरेज. मैं बोलता हूं सब यहूद एक साथ में हो जाओ और बोलो हम मौत के लिए तैयार है, मुमकिन ही नहीं है. तो कुरान में ऐसे फॉल्सिफिकेशन टेस्ट में तकरीर दिया हूं, क्या कुरान अल्लाह का कलाम है, उसमें कैटेगरी है फॉल्सिफिकेशन टेस्ट. आपको कुरान को गलत साबित करना है, अल्लाह ने आपको चैलेंज दिया है. एक सूरा पेश करो मिसाल के तौर पे, मिसली सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 23 और 24. तो फॉल्सिफिकेशन टेस्ट. तो इसी तरीके से हम क्या करना चाहिए? कोई अगर खिलाफ बात करता है आपको जवाब देने का है, जवाब देने की नाम मत लो, उसका नाम मत लो. नाम लेने की जरूरत नहीं. अगर कोई आपको इल्जाम लगा आपको क्लेरिफाई करने का, नाम मत लो. और नाम लेंगे तो आप 2 बोलेंगे तो 4 गाली देंगे और 5 गाली तो चलते रहेगा. अगर आपको मिसाल के तौर पे, मैं तो अभी मेरे बेटे ने मुझे वो इंटरव्यू के फौरन बोले 2 दिन बाद, अब्बा मिस्टेक हो गई. मैं तो देखा ही नहीं इंटरव्यू, सुना ही नहीं, दिया. अब्बा आपने गलती की इधर. मैंने गलती क्या? अभी उसको थोड़ी बोलूंगा निकाल के सही कर. हम लोग एडिटर्स चेक करते, तो किसने पकड़ा नहीं. मेरे बेटे ने बोला अभी हो सकता है 2 हफ्ते बाद किसने पकड़ा, पकड़ के उसको खींचतान कर रहा है. तो कोई भी इंसान जिसके पास इल्म है, तो डॉक्टर जाकिर नाइक की कैसेट सुना है, वो जानता है. तो जहां तक कि जितना भी तनाव है तो कोशिश करो कि आप आपस में गुफ्तगू करें, और जो यकसा उसके ऊपर जो आपको लगता है वह बहुत खिलाफ है, तो उस मौजू को साइड पे रखो. उस मौजू को छेड़ने की जरूरत ही नहीं. मैंने कहता हूं कि मानो उनमें, आप अपने हक पे रहो, लेकिन हिकमत से. मैं माशाल्लाह सब लोग के इसमें जाता हूं. इंडिया में माशाल्लाह कई जमातें हैं, कई है. और फिर क्या होता है, सब लोग समझते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक मेरा है, वो डॉक्टर जाकिर. अच्छा, मैं आप देखेंगे अल्लाह के रसूल, अगर आप पढ़ेंगे साहबा, हर साहबा समझता था कि अल्लाह के रसूल सबसे करीब मेरे है. हर साहबा. मैं तो वैसा हूं नहीं, लेकिन जब आप दावती काम करेंगे और छोटे छोटे चीज को पीछे रखेंगे, अल्लाह आपकी इतनी इज्जत ऊपर बढ़ाएगा. अल्लाह आपकी इज्जत बढ़ाएगा और अल्लाह मोहब्बत भी बढ़ाएगा. ये जो भी आप देखो, मैं तो मुकर्रिर था नहीं, मैं आलिम भी नहीं हूं. ये हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी, अल्लाह की मोहब्बत है. अल्लाह दिल में मोहब्बत डालता है. तो ख्वाब में भी 25 लोग नहीं सुन सकते थे. तो हमें खुलूसन सिर्फ अल्लाह के लिए अगर करेंगे, हमारा मेन एम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए अल्लाह की रजामंदी. आपका ये वाहिद ऑब्जेक्टिव रहेगा अल्लाह की रजामंदी. तो इंशाअल्लाह और जरा हिकमत से आप काम लेंगे तो ये फिरकाबंदी अभी मेरे हिसाब से कम हो रही है. पहले जब मैं बचपन से था तो बहुत गाली गलौच होता था, अभी कम हो रही है. तो उलमा भी अब हिकमत से काम ले रहे माशाअल्लाह. एक ही प्लेटफॉर्म पे आ रहे. एक प्लेटफॉर्म पे आना नहीं कि हम 100% मानते, ठीक है, 95% सेम है, उसमें जरूरी थोड़ी. तो कुछ जो लोग शिद्दत पसंद है, तो अल्लाह को नहीं पसंद कि आप शिद्दत पसंद, ला तगलू फी दीनिकुम, कि आप एकदम शिद्दत पसंद मत लो. तो अगर ये उसूल फॉलो करें तो इंशाल्लाह जो दरार बीच में से निकल जाएंगे.